होगा कि यू आर एबल टू कनेक्ट विद योर इमोशंस, यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस. सो उससे एक तो लैंग्वेज अच्छी हो जाती, लेकिन सेकंड है सोली लैंग्वेज अच्छी हो जाती. लैंग्वेज अच्छी हो जाती मतलब बात करता हूँ, भाषा अच्छी कर. सेकंड इज यू आर एबल टू कनेक्ट विद योरसेल्फ. एंड थिंग इज जिसको हम बोलते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स. What do you get when you mix an HR strategist, a stand-up philosopher, a boardroom bard, and a shaitan slinging corporate warrior? You get Mr. Harjeet Khanduja, the man who can resolve industrial disputes and conflicts and simultaneously can write a poem about it with the same time. He's a senior vice president of HR at Reliance Jio, a global speaker, a professor of practice, an author, a poet, an inventor. Today, we are not just talking NHR, we are talking humor and reality. Human resourcefulness and the R.K. Lakshman of business. So many hands. Welcome to the podcast of Indore Management Association. Sir, I'm so delighted to have you here. Welcome. Thank you. Yeah, thank you for that. So, you wear many hats. I mean, HR leader, poet, innovator, speaker, influencer. So, आपके बे के करीब हो, if you feel that, look, this role of mine or this position of mine is closest to mine. I wear only one hat. And nothing as a many. Title of a happy soul. Oh wow, what a brilliant answer. That you wear a hat of a happy soul. तो इतना सब कुछ कैसे सर अनिकी? Sir, HR is a strategist and HR can be poetic. तो ये combination कैसे? Strategist भी और poetic भी. तो ये हर एक आदमी में ना स्प्लिट पर्सनालिटी होती है, तो काफी सारी पर्सनालिटीज होती. सो एवरी टाइम यू कैनॉट बी से you try to bring out different facets of your personality so that you know more about yourself. ये जब मेरे को समझ में आया तो मैंने कहा कि ट्राई करके देखते हैं. तो हमने धीरे धीरे सबको एक्सप्लोर करना शुरू किया कि अच्छा मैं आप तो नहीं हो सकता वो एरिया पे एक्सप्लोर कैसे किया. मैंने I lived life as it comes. And once I thought of exploring, so you touch something, then you find कहता ये कर सकता है कि नहीं कर सकते. मेरा चाइल्डहुड ने बच्चा कदम में क्लास 2 के एक बार आर्ट बनाने, तो उसमें वैसे चूहा बना के एग्जाम में. एंड मेरे को एज अ बच्चा को इमोशन याद है, तो मैंने कहा कि इतने छोटे बच्चे को हाउ कैन दे टेल के चूहा बनाओ, हाउ कैन आई ड्रॉ अ माउस. तो ये ख्याल अपन तभी आ रहा है. हाँ, तो उसके बाद मैंने वहां पे वो वी वाला चूहा बनाया ऐसा फिर के. एंड देन आई थॉट आई एम नॉट गुड एट आर्ट एंड आई विल नेवर बी एबल टू डू आर्ट. एक दिन लोग बैठे हुए थे यार, माई सिस्टर इन लॉ सेड खाली बैठे हैं, एक काम करते हैं, सब लोग बैठ के आर्ट बना. मैंने मेरे को तो बनानी आती, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप कैनवस ले लो जैसा आपसे लगता है वैसा. वहाँ जितने लोगों ने बनाया मेरा आर्ट सबसे अच्छा सबसे बेस्ट. एंड देन आई केम टू नो कि अच्छा ये कर सकता हूँ. मे बी आई डिड नॉट गेट अ राइट टीचर हु, एंड देन आई रियलाइज्ड कि इफ आई कैन डू आर्ट then I can do any. So as a human being, you should never restrict yourself to that you can do only one thing or two things. You should explore and figure out what all things you can be good at and do all those things. And I am not alone. I have seen so many people who are actually doing multiple things in their life and they have succeeded. Talk about Chetan Maga, Jot Singh Se. There are hundreds of people you will find
who actually try to explore their personality one way or the other. Instead of poetry, I want to ask you what role poetry has played in your life to enhance, support or refine your reader's style. तो पोएट्री का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कि आप एक अच्छी लीडर बनी? क्या पोएट्री से लीडरशिप का कोई कनेक्शन हुआ है? Is the poetry responsible making you a good leader, a fantastic leader? How poetry has contributed you into an iconic leader? Iconic तो मैं इसको नहीं मानता, but actually poetry is a gift from my parents. My father used to write dohas. अच्छा. My mother used to write नई कविता. My brother writes in the name of Sharad Banarsi. So I was the only useless guy. He badly. And I was never able to write anything. वो लोग बाहर जाते थे तो मेरे को गट्स छोड़ जाते थे, इसको लिखना नहीं आता है. So, मेरे को खराब बहुत से लिखते हैं हाँ, तो मेरे को खराब लगा. उसके बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया. सो लिखने से क्या हुआ कि यू आर एबल टू कनेक्ट विद योर इमोशंस, यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस. सो उससे एक तो लैंग्वेज अच्छी हो जाती. सेकेंड है सोली लैंग्वेज अच्छी हो जाती. लैंग्वेज अच्छी हो जाती मतलब बात करता हो, भाषा अच्छी. सेकेंड इज यू आर एबल टू कनेक्ट विद योर सेल्फ. एंड थिंग इज जिसको हम बोलते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स. वाओ, वेरी नाइस. सो अपने आप को समझना शुरू किया, इमोशंस को समझना शुरू किया. कुछ सामने वाले के इमोशंस आपको समझ में आते हैं. एंड दैट हेल्प्स इन योर लीडरशिप स्टाइल, एनी मैनेजमेंट पोजीशन की. पैराडाक्स. सो दी पोएट इतना खाली पोएट्री नहीं, एनी आर्ट फॉर्म helps you in doing your business planning. Simbaji. So my next question. Indian workplaces, ये एक ecosystem है. जुगाड़, emotions, child lakes, the union. So how do you find the HR culture in India is different from rest of the you find? अरे हाँ, मैनेज करना लोगों को कितना डिफिकल्ट है या नहीं डिफिकल्ट है तो कितना आसान. How do you think that the HR culture हिंदुस्तान में और HR culture बाहर क्या डिफरेंस? ऐसा कोई रिबेट आप बर्स्ट करना चाहते हैं जो हमें नहीं पता? नहीं, देखिए आपको लोगों को समझना होता है. आपका बिजनेस आपसे क्या चाहता है. आपका बिजनेस आपसे चाहता है आपके पास जब बिजनेस को लोग चाहिए, आप ठीक लोग लेके आ पाओ जिनके तो वो कैपेबिलिटी है जो बिजनेस को चाहिए, वो टैलेंट है जिसके बेसिस पे वो बिजनेस को आगे देखता है. उसके बाद आप चाहते हो कि वो खुशी खुशी अपना काम करें, आपको 100% प्रोडक्टिविटी. यही बिजनेस की आस को देते. अभी हर कंट्री का कल्चर अलग होता है. मतलब कोई सोसाइटी फॉर्मल होती है. अगर आप कि मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न क्या ईस्टर्न कंट्रीज आप जापान पे चले जाइए तो देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉर्मेलिटी, फॉर्मल स्ट्रक्चर. शॉप. इंडिया में इनफॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है. मतलब हम लोग एक दूसरे को ऐसे करके कहीं क्रिएट कर रहे और ऐसे नहीं करते. दूसरी चीज हम यूएस की तरह एक दूसरे को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी नहीं करते. हम मान लेते हैं कि हाँ सारे लोग अप्रिशिएटेड. तो और इंडिया के अंदर भी अगर आप देखें, आप यूपी में ऑपरेट कर रहे हो तो वहाँ के लोगों को बात करने के लिए कोई चाहिए होता है. उनकी भावनाएं, मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश पर बैठे, अगर आपकी बात सामने वाले के दिल पे लग गई तो वो आपके लिए जान भी दे दी. एंड जैसे जैसे आप नीचे आते हैं लोग लॉजिकल होते जाते हैं, रैशनल होते जाते हैं. जब किस तरीके के लोगों के साथ आप काम कर, अभी आप बॉम्बे में जाएं तो वहाँ सारे तरीके के लोग मिक्स होके आ जाते हैं, तो एक डाइवर्सिटी बन जाती है. अब वो डाइवर्स क्राउड के साथ डील करना एक एस्पेक्ट है कि आप समझ पा रहे लोगों को. उसके बाद आप उनकी मोटिवेशन समझ के उनको बिजनेस के साथ कनेक्ट कर पा रहे. तो काम सब जगह एचआर का सेवी है, लोग को समझ के उनको बिजनेस के साथ अलाइन करता. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, फ्रेमवर्क्स,
वो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सेम ही चल। तो फिर आपको क्या लगता है कैसे टू मच ऑफ डाइवर्सिटी रियली स्पॉइल या डाइवर्सिटी होना अच्छी बात? मतलब आपका क्या टेक है, आपका क्या नोशन है? ज्यादा डाइवर्सिटी से नुकसान है या ज्यादा डाइवर्सिटी से फायदा है? डाइवर्सिटी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, डाइवर्सिटी तो हो जाती है। अभी डाइवर्सिटी हो गई तो उसके बाद यू कैन वर्क ऑन इंक्लूजन सो दैट सब लोग साथ में अच्छे से काम कर पाए। अभी जैसी सोसाइटी है यू कांट से कि मैं बिना डाइवर्सिटी के काम कर। सो ये सोचना कि हम मतलब ऐसी कंपनी बनाए जिसके अंदर एक ही तरीके पे लोग काम करें, ये ऐसे नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि आप इंडिया वैसी कंट्री, देश इज नॉट अबाउट इंडिया, एनीवेयर इन द वर्ल्ड द वे सोसाइटीज हैव प्रोफेस, आप किस किस एस्पेक्ट में लोगों को सेम करने की कोशिश करोगे? अच्छा सारे ये चीजें चाहिए मेरे को, उसके बाद सारे सेम रिलीजन के चाहिए, सारे सेम एरिया के चाहिए, सारे सेम जेंडर के चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। तो पॉसिबल नहीं है। टैलेंट के लिए वॉर चल रहा है तो आप देखते हो कौन बंदा फिट है एंड यू डोंट लुक एट दोज पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे आप कह रहे हो कि अच्छा मेरे को एक जैसे लोग चाहिए। द ओनली थिंग यू शुड लुक एट इज वेदर द पर्सन इज केपेबल ऑफ Irrespective of irrespective of any caste, the culture, biography, basis. So you're known to be the bridge between the CEOs and the employees. So how do you handle the conflicts and the egos and the clashes and the communication of the bridges? तो आपका मूल मंत्र क्या है? What is your success mantra that you handle this party and as well as the other way? पर सिंपल सा काम होता है एचआर वाले क्या सबको समझना। ऐसा और इधर भी हाँ तो सबकी बात समझ के और सबका साथ सबका विकास। वाह, हम अपने पॉडकास्ट के एंड पे पहुंच गए हैं और सर हमारे पॉडकास्ट का एक हमने एक वो थंब रूल बना रखा है कि हम रैपिड फायर जल्दी जल्दी करते हैं। तो रैपिड फायर पे मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, कुछ बिटी, और आपको एक लाइन में जवाब देना है। वन थिंग सीईओ शुड नेवर से टू एचआर। एक लाइन है जवाब। सीईओ को कभी एचआर को नहीं बोलना चाहिए। सीईओ कुछ भी बोल सकता है चाहे अब पैसे कोई चीज है कि नहीं बोलना चाहिए। दुनिया में कोई भी आके किसी को कुछ भी बोल सकता है। सर व्हाट इज मोर डिफिकल्ट, राइटिंग अ पोएम या फिर मैनेजिंग अ परफॉर्मेंस एप्रेजल? दोनों में से मुश्किल कौन है? ये दोनों एक प्रश्न। पोएट भी मुश्किल नहीं है और परफॉर्मेंस एप्रेजल भी। ओके अच्छा, वन ऑफिस के लिए सब्जेक्ट लाइन दैट गिव्स यू माइल्ड ट्रॉमा। क्यों क्यों? अच्छा, और एक आखिरी सवाल, वन क्वालिटी दैट रियली इम्प्रेसेस यू, one quality in the beater that really impresses you and one quality that really irritates. One quality that Impresses you in the people and one quality that really irritates. with people who outside their book and That irritates. no That impresses you. that impresses that people are taking responsibility and people are taking ownership, that is something like That impresses you. And what does irritate you? irritate में होता। Thank you so much, sir. It was wonderful chatting with you. And thank you all the viewers of Innor Management Association. Please do like this podcast, subscribe, comment. Thank you so much for listening to us. And thank you, sir, for coming down. Thanks, it's my pleasure.